हाँ भाई. My name is Anurag Anand. So just to give you a brief introduction about my professional career and all. I'm 2015 graduate from IT Roorkee, and then I worked in a startup for a year, and then I did my postgraduate from IIM Kashipur in marketing strategy, and then I started my professional career from OYO. I was working there as central BD operations, looking after North India. I Fortunately, then I got a chance to move into FMCG company. I joined VBL Pepsi in general trade role. I was looked after in Bihar for 2 years in general trade, and then I was associated with Marico for a year. Then Bajaj Consumer Care as a sales development manager for a year, and then I currently I'm Reckitt from the last 2.5 years, looking after again Bihar market in GT. So my agenda is to give you some, there are a lot of terms, terminologies, concepts. ठीक है. क्यों ऐसा होता है? There are different perspectives as a leader. What actually a leadership team thinks? What actually how a company go to some sort of decision. So gradually I'll make a number of videos so as to give you understanding about each and everything regarding sales, specifically FMCG, and also other area if it would be possible for me, if my time allows me. So देखते हैं. We'll try to solve in terms of clarity, in terms of getting the grip of the concepts or the perspective behind any construct or policy for that matter. Okay, very important for FMCG sales guys or a company. This concept might be confusing for many of us. Uh, I literally find मतलब, a lot of guys are मतलब, so much confused about the terms and terminology used in Nielsen. Nielsen data का क्या importance होता है? Make clear that as well. So I just want to give the brief understanding about how Nielsen data goes. I think it would be able to clear all your thoughts, and it will make that concept very stringent to your mind, so as to आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे. ठीक है. ठीक है. So let's start. First of all, I'll give you a basic understanding about how the stocks or the company's brand, और जो माल बोलते हैं हम हिंदी में, while handling a team, वो कैसे मूव करता है, मतलब how everything is calculated, how everything is monitored. So उसमें हम clarity देंगे so as to cover the maximum audience at this point of time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कंपनी का एक डिपो होता है, जिसको हम सीएफए भी बोलते हैं बहुत सारी कंपनी में. ठीक है. डिपो सीएफए में कंपनी का स्टॉक्स होता है, राइट. डिपो सीएफए से हमारा बीवी और सुपर को माल जाता है. फेयर इनफ. बीबी किसको बोलते हैं? जो कि अर्बन मार्केट देखता है. ठीक है. और सुपर किसको बोलते हैं? जो कि रूरल मार्केट देखता है. वेरी क्लियर. फिर डीबी और सुपर से क्या होता है? डीबी दो तरीके से माल मार्केट में देता है. एक होता है थ्रू रिटेल, जो रिटेल आउटलेट्स में जाता है, जो कि नॉर्मल दुकानदारें होती है. और दूसरा होता है होलसेल, जो कि होलसेल में जाता है, और फिर होलसेल से डिफरेंट रिटेलर्स बाहर से, आसपास की जगह से आते हैं, फिर वहां पे होलसेल में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो उनको स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट वो लेते हैं. रूरल में किससे जाता है? सब डी से आता है, जिसको हम लोकल स्टॉकिस्ट भी बोलते हैं. फेयर इनफ. अब क्या है कि डीबी, डिपो से जो डीबी और एसएस में गया, जब डिपो से डीबी और एसएस में डील हुआ, उसको हम बोलते हैं शिपमेंट. चेंज कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सा वो लगे. इसको क्या बोलते हैं? शिपमेंट या फिर प्राइमरी.
ठीक है, डिपो से यहाँ गया, डीबी और एसएस में शिपमेंट प्राइमरी, डीबी और सुपर से रिटेल और होलसेल में गया, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, रूरल से सब डीबी और लोकल स्टॉकिस्ट में गया, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, फिर सब डीबी और लोकल स्टॉकिस्ट से, जो सब डीबी होते हैं रूरल में, जो छोटे टाउन होते हैं, तहसील होते हैं, विलेज होता है, 5,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन, 20,000, 25,000 पॉपुलेशन वाले जो गांव होते हैं, वहां पे भी ऑब्वियसली एक सब स्टॉकिस्ट करके रहता है, और वो क्या करता है, वो तो या फिर बगल के जो बड़े टाउन होते हैं वहां से माल लाता है, स्टॉक्स लाता है, या फिर जो फॉर्मलाइज है ना डिस्ट्रीब्यूशन है किसी कंपनी का इन टर्म्स ऑफ सुपर, वहां से उनको डिलीवर होता है माल। तो उसके पास जब माल आता है, ये काउंटर स्टॉकिस्ट भी उसको बोला जाता है, कभी कभी वो काउंटर से माल बेचते हैं, इसीलिए सबडी और लोकल जो स्टॉकिस्ट है वो रिटेल को माल देते हैं, रिटेल आउटलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी। ये टर्सरी जो है ना, ये सुपर के लिए टर्सरी हुआ, आ गया, ठीक है, बट सब डीबी और लोकल स्टॉकिस्ट के लिए क्या होगा? सेकेंडरी होगा। तो ये इसका अपना अलग रिलीवेंस। जो सेकेंडरी होता है ना, वो बहुत कंपनी में आईएमएस बोलते हैं, ठीक है, आईएमएस क्या हुआ? इन मार्केट सेल्स। इतना मतलब तामझाम समझाने का मेरा मकसद ये था कि डिपो से सीएफए में शिपमेंट किया हमने, जिसको प्राइमरी बोल दिया, फिर हमने डीबी और एसएस में सेकेंडरी करा, वहां से डीबी और एसएस से हमने सेकेंडरी करा रिटेल और होलसेल में, रूरल से फिर हमने सब डीबी मांग दिया, सब डीबी से रिटेल आउटलेट्स में दिया। वे सब का डेटा अपने पास हमेशा रहता है, ऑब्वियसली मैंने कितना बिल किया मेरे पास रहेगा डेटा, जीएसटी कॉम्प्लायंस है, ऑडिट होता है, सब होता है, तो वो डेटा भी मेरे पास शिपमेंट का रहेगा। सेकेंडरी का मैंने क्या किया कि अर्बन से ऑब्वियसली मैं बिल काटूंगा, आजकल तो हर एक कंपनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में काफी स्ट्रांग हो रही है, तो जो भी मैं डीबी और रिटेल होलसेल में बिल काटूंगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। इसका भी मेरे पास डेटा होगा, ठीक है, सब डीबी और लोकल जो स्टॉकिस्ट होते हैं उससे हम रिटेल आउटलेट्स को माल देंगे, वहां पे भी बहुत सारी कंपनी टेक्निकली स्ट्रांग हो रही है, तो वहां पे भी हमें जो भी होगा उसका डेटा मिलेगा। ये सब डेटा तो हम देख सकते हैं, लेकिन जब रिटेल आउटलेट से कस्टमर ले जाता है, कस्टमर और कंज्यूमर, सेम अप्लाइज फॉर हियर एज वेल, तो वो डेटा कलेक्ट करना बहुत टफ। हर एक रिटेल आउटलेट्स कितना माल बेच रहा है, कितना उसके गोडाउन में है, कितना उसके दुकान में है, कितना उसके दुकान में अंदर घुस करके रह गया जो दिख ही नहीं रहा है, ये डेटा बहुत टफ है टू गैदर। तो यहाँ पे हमारे निल्सन भाई साहब का है ना इम्पोर्टेंस आ, ये निल्सन भाई साहब जो है, ये कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन, जिसको हम एक बोलते हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी के नजरिए से। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पीक अबाउट इट एज वेल। तो क्या है कि ऑप्टिक इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, टू मेजर, टू हैव मॉनिटर्ड। सो दैट इज द रीजन देयर इज अ कंपनी जहां के बहुत सारे लोग डिफरेंट लेवल पे डेटा कलेक्शन, डेटा क्रंचिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा रिसर्च, वो सब करते हैं, बहुत सारा तामझाम को एक अच्छे फॉर्म में ला करके आपको वो डेटा देते हैं, जिसमें हर एक कंपनी का ब्रांड लेवल पे, कैटेगरी लेवल पे आपको वो सेल्स दिखता है, सो दैट कि आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में आप किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है। उस डेटा से हम लोग ये भी इन्फर कर सकते हैं कि हमें और मार्केट में क्या मेहनत करना है, हमें कहाँ पे दिक्कत है, जिसकी वजह से हमारा जो कैटेगरी है, जो ब्रांड है, वो मार्केट में जगह क्यों नहीं बना पा रहा है, या बनाया है तो उससे इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे ही रोल बहुत सारे कंपनी में ब्रांड मैनेजर होते हैं, सीडीएमएम होते हैं, जिसको क्लस्टर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर बोलते हैं, क्योंकि
ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर होते हैं जो कि एक्चुअली ब्रांड के अकाउंट देखते हैं कि कैसा क्या करे कि अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। और मार्केट शेयर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये है ना कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई और ध्यान देगा, और अगर कोई और ध्यान दिया तो आपका ब्रांड धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएगा, आपका ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे गिरता जाएगा। जो एक लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंड में आपके ब्रांड का जो प्लेस है, वो प्लेस धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ब्रांड मार्केट से खत्म हो सकता है। अगर मैं 10, 12, 15 साल के पहले की बात करूं तो अगर शूज के नाम पे अपन रिबॉक सुनते थे। रिबॉक मतलब रिबॉक होता था, नाइकी और एडिडास को उतना लोग ध्यान नहीं देते देते थे जो भी था, लेकिन रिबॉक रैंक वन टाइप का एक फील था कि रिबॉक का जूता पहनना है। आपने देखा कि पिछले 5, 7 साल में, 8 साल में रिबॉक का कभी कभी आपको दुकान में मिलना टफ हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ रिबॉक। अभी वो ऑब्वियसली रिवैम्प कर रहा है, ठीक है, वो ट्राई कर रहा है मार्केट में फिर से जगह बनाने का। बट समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर का या फिर नीलसन डेटा का, ताकि उसको एनालाइज करके अपने गैप्स पे, अपनी कमी पे काम करना और अपने ब्रांड को कांस्टेंट रखना या फिर उससे ऊपर बढ़ाते रहना। ठीक है, तो दैट बिकॉज यहाँ पे बात 2, 4 लाख, 2, 4 करोड़ का नहीं है ना, हजारों हजार करोड़ का बात है। एक ब्रांड का जो वैल्यू होता है, किसी किसी को ऐसा ब्रांड जो हजार हजार करोड़ का बिकता है, तो उसमें तो मतलब भाई ये डेटा पे काम करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, इंपॉर्टेंट केपीआई बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, सो नीलसन क्या करता है, नीलसन आपको ऑफटेक देता है। ठीक है, नीलसन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम आएंगे जो नीलसन डेटा में हम स्पेसिफिकली 3 कीवर्ड्स पे आज बात करेंगे। उससे पहले जानने के पहले एक बेसिस पॉइंट करके होता है, क्योंकि नीलसन में हर एक डेटा बेसिस पॉइंट के टर्म्स में होता है। ठीक है, जिसको बीपीएस बोलते हैं। सिंपल ये याद रखना है, इतना तामझाम जितना जिंदगी में चीजें का रिक्वायरमेंट हो ना, उतना ही एफर्ट लगाइए। ठीक है, 100 बीपीएस इज इक्वल टू 1%। ठीक है, तो निल्सन में जो भी डेटा होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं जिसको फैक्ट्स के कॉलम के अंडर आता है वो। ठीक है, मार्केट शेयर होता है, बाय वैल्यू, बाय यूनिट्स, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एसएएच होता है, शेयर अमॉन्ग्स्ट हैंडलर्स, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑफ टेक होता है, सेल होता है। तो वो सब है ना डेटा कभी कभी बीपीएस के टर्म्स में ठीक होता है। जैसे वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि किसी ब्रांड का, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रांड लेके चलता हूँ, अनुराग, अनुराग सोप। सोप एक कैटेगरी है, सोप कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड होंगे। एक अनुराग की कंपनी है, ब्रांड है सोप का। जैसे लक्स फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड हो गया सोप का, डेटॉल एक ब्रांड हो गया सोप का। ठीक है, वैसे एक अनुराग ब्रांड है, तो अनुराग ब्रांड मान लो कि 225 बीपीएस से ग्रो किया इस चीज में, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका मतलब अगर इसको परसेंटेज में हम लिखेंगे तो कितना होगा, 2.25%। वेरी क्लियर। ठीक है, सो नीलसन डेटा को हम स्टडी करेंगे 3 एस्पेक्ट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों कॉन्सेप्ट। इसी तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान रखना होता है, ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर इस तीनों कॉन्सेप्ट पे अगर हम अच्छा सा पकड़ बना लेंगे, थॉट अपना अच्छा जो कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेंगे, देन आपको नीलसन में उतना कुछ ज्यादा बचता है नहीं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट उतना कुछ ज्यादा बचता है नहीं। सब इसी के अराउंड होता है, इसी के अराउंड आपको स्ट्रेटेजी बनाना होता है, इसी के अराउंड आपको गैप्स पे है ना वर्कआउट करना होता है। ठीक है, पहला क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है शेयर अमॉन्स्ट हैंडलर्स। इसको एसएच बोलते हैं, इसको डब्ल्यूडी बोलते हैं, इसको एनडी बोलते हैं।
ठीक है, ये 3 ऐसे टॉपिक है, ऐसे टर्म्स है जो आपको अच्छे से समझना है। इन एंड आउट, वो प्याली पुलाव वाला नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर अंदर से अच्छे समझना है। ठीक है, एक एक करके इस टर्म्स को हम समझते हैं। तो पहला टर्म था अपना एनडी, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत प्लेन डेफिनेशन इसका ये है कि हम कितने दुकानों में प्रेजेंट हो। वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्टल क्लियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम हाउ मेनी आउटलेट्स वी आर प्रेजेंट। तो एक ओएमआर करके होता है। ओएमआर क्या बोलते हैं? ओवरऑल मार्केट रीच। ओवरऑल मार्केट रीच क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल सोप है या सोप रिलेटेड कोई ब्रांड है, वो अगर एक टाउन लेते, एक टाउन में अगर 100 दुकानों में सोप या सोप रिलेटेड कोई कैटेगरी है वो प्रेजेंट है, तो वो हम ओएमआर को में लेते हैं कि तो ओवरऑल कितना मार्केट रीच है जहां पे हम पहुंच सकते हैं। भले हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन अगर 100 आउटलेट्स है जहां पे सोप अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, उससे या उससे रिलेटेड कैटेगरी और इंडस्ट्री अगर किसी दुकान में प्रेजेंट है, देन दैट मीन्स कि वो मेरे मार्केट रीच में आता है, हमें वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं है दोनों का अपना अपना अलग अलग लेवल पे इंपॉर्टेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी टाउन का मान लेते हैं, वो टाउन है, टाउन का नाम है गिरगर्दन घाट। एक गिरगर्दन घाट टाउन है जहां पे टोटल आउटलेट्स कितना है? ठीक है, टोटल आउटलेट्स कितना है? 100। ठीक है, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ outlets that we are present in divided by number of outlets that we are present in divided by total number of outlets। ठीक है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। कितने आउटलेट हम प्रेजेंट है डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स विच इज क्या है? ओवरऑल मार्केट इज लाइक ओएमआर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अनुराग सोप एक करके है, अनुराग सोप करके है। ठीक है, अनुराग सोप करके है, अनुराग सोप 70 दुकानों में मान लेते हैं प्रेजेंट है। ठीक है, अनुराग सोप 70 आउटलेट्स प्रेजेंट है और हमारा ओवरऑल मार्केट कितना है? 100 है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 70 by 100, 70 outlets that we are present in and 100 outlets that overall market reach। तो मेरा 0.7 आएगा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम परसेंटेज के टर्म्स में 70% भी कह सकते हैं। वेरी सिंपल। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य होता है? एज अ सेल्स गाय और एज अ मतलब टीएमएम गाय, वट एवर यू कैन कॉल, मतलब सबको एज अ फैमिली काम करना पड़ता है। एंड सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हम मैक्सिमम दुकानों में पहुंचे, मतलब पहले हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी मेरे रिलेटेड आउटलेट है पहले हम वहां तक पहुंचे, तो अपने न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करें। अगर हम दुकान में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, और जो भी कस्टमर, प्रोबेबल कस्टमर और कंज्यूमर आ रहे हैं, उनके माइंडसेट में अपना एक इमेज बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट रहना दुकानों में, और इमेज बनाने के साथ पैरेलली एक और चीज होता है कि जो कस्टमर होते हैं, प्रोबेबल कस्टमर होते हैं, उनको एक कंफर्ट देना, एक वो आराम दे कि आराम से ये प्रोडक्ट मिल जा रहा है। सो रीच बढ़ाना हमारा क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करते हैं वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन।
फटाफट, ठीक है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में दो इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। इट डज नॉट रिलेट टू सेल्स ऑफ आवर्स। जब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं ना, उससे हमारा कितना सेल हो रहा है, किस क्वांटम में सेल हो रहा है, 10,000 का बिक रहा है, 5,000 का बिक रहा है, 600 रुपए का बिक रहा है, उससे मतलब इसको नहीं होता है, ठीक है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेग सा, लोग कभी कभी अर्थमेटिक मीन या वेटेड एवरेज जो निकालते हैं ना, उससे वो रिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट को खराब करते हैं। उनको लगता है कि वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि एक सेल्फ में हम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो अच्छा है, मतलब उस सेल्फ में, लाइक फॉर एग्जांपल एक दुकान में 10 सोप ब्रांड प्रेजेंट है, अगर उसमें 10 पीस में, फॉर एग्जांपल 10 पीस ही है, अगर में मेरे 6 है तो ज्यादा अच्छा है, 7 है तो और भी अच्छा है। नहीं, वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत है, वो आपने गलत सीखा है। तो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इट डज नॉट रिलेट टू सेल्स ऑफ आवर्स। आई विल इलैबोरेट इन अ बेटर वे। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स द राइट सेट्स ऑफ आउटलेट्स वी आर present. Whether we are present into the right outlet or not, that is given by weighted distribution. ठीक है। weighted distribution का मतलब क्या होता है कि हम राइट सेट्स ऑफ आउटलेट्स में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। weighted distribution एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन जाता है हमारे ब्रांड को बिल्ड करने का। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर, मैं अभी फॉर्मूला पे आऊंगा एंड तो मैं उसके बाद आपको समझाता हूं कि कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। weighted distribution इक्वल टू sales of category that our brand is present. सेल्स ऑफ कैटेगरी में बोल रहा हूं, उसके हमारे सेल्स से कोई मतलब नहीं है, राइट। सेल्स ऑफ कैटेगरी दैट आवर ब्रांड इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ कैटेगरी। ऊपर में हमने ये दिखा दिया, मान लेते 5 में से 3 आउटलेट्स में हमारा ब्रांड प्रेजेंट है, उन 3 आउटलेट्स में हमारा जो कैटेगरी का पूरा सेल था, अगर मैं अनुराग सोप 3 आउटलेट प्रेजेंट है तो उस 3 आउटलेट में टोटल सोप का सेल का समेशन विल बी एट द न्यूमरेटर साइड, राइट। और नीचे में पांचों दुकान का कैटेगरी कितना सेल हुआ, दैट विल टोटल सेल्स कैटेगरी, ठीक है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी क्या है कि एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा जिसमें वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एससीएच दोनों रहेगा। अभी फिलहाल आप इसको यहां तक समझ लीजिए, ठीक है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करने का ऑब्वियसली सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जहां पे मेरे ब्रांड का कैटेगरी ज्यादा प्रेजेंट है और अगर हम वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो हमें वहां पे प्रेजेंट होना, राइट। अगर कि कई कोई आउटलेट है जिसमें मेरा सोप का कैटेगरी 30,000 रुपए का बिक रहा है, 50,000 का बिक रहा है और वहां पे अनुराग ब्रांड जो है, अनुराग सोप जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर वो दुकान 40-50 हजार का साबुन बेचता है, इसका मतलब उस दुकान में साबुन से रिलेटेड प्रोबेबल कस्टमर्स आते हैं, राइट। और जब प्रोबेबल कस्टमर्स आते हैं और वो हमारा साबुन वहां पे नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कंपटीशन का साबुन लेंगे, और जब वो दूसरे का साबुन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली मेरा अपॉर्चुनिटी सेल का नुकसान होगा। जो सेल मेरा हो सकता था वो सेल का नुकसान होगा क्योंकि हम वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। 50,000 अगर सूप कोई दुकान बेच रहा है वहां पे प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वी आर लूजिंग आउट ऑफ, ये गुनाह है, पाप है, क्राइम है, ठीक है। तो वी आर नॉट प्रेजेंट एट द राइट आउटलेट्स, so that is very much important that we need to be at the right outlets, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको
इसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का, क्यों ऐसा करना चाहिए, मोटा मोटी मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया है। तीसरा है आपका एसएच। एसएच का मतलब क्या है, अगर इसको हम एब्रिविएशन को फुल में फॉर्म में लाए तो एसएच इज लाइक शेयर अमॉन्ग्स हैंडलर्स। हैंडलर्स मतलब हु इज हैंडलिंग आवर कैटेगरी, उस कैटेगरी में जो भी हमारा हैंडलर है उस पे हमारा शेयर क्या है, दैट इज कॉल्ड एसएच। शेयर अमॉन्ग ऑल दोज आउटलेट्स वेयर आवर कैटेगरी इज प्रेजेंट, राइट। उसी दुकानों में जहां पे मेरा कैटेगरी है और आम है, वहां पे मेरा शेयर कितना है, जो मेरा हैंडल है, जो मेरे को हैंडल कर रहा है, वहां पे मेरा कितना शेयर है, दैट इज कॉल्ड शेयर अमॉन्ग हैंडलर्स। इसको अगर हम फॉर्मूला पे जाएंगे, टोटल टोटल सेल ऑफ आवर ब्रांड, टोटल सेल ऑफ आवर ब्रांड वेयर वी आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली जहां पे प्रेजेंट रहेंगे तो वहीं पे सेल लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सेल ऑफ कैटेगरी इन द आउटलेट्स वी आर प्रेजेंट। ठीक है, तो शेयर अमाउंट हैंडलर्स का डेफिनेशन ये हुआ। अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ, शेयर अमाउंट हैंडलर्स का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एक दुकान है, वहां पे 100 रुपए का वो साबुन बेचता है, ठीक है। दो सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो ए सिनेरियो बी। ये दुकान है सोप, 100 रुपए का साबुन बेच रहा है। इस पे जो अनुराग सोप है वो मान लेते हैं 20 रुपए का बिकता है, ठीक है। तो मेरे पास शेयर अमाउंट हैंडलर इन आउटलेट ए क्या हो जाएगा, 20%। 100 में से 20 रुपए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ कि शेयर अमाउंट हैंडलर्स को इंप्रूव करने का क्या फायदा होता है, कैसे ये मार्केट शेयर को गेन करने में इसका इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे इसका इफेक्ट वहां पे दिखता है। अब बी में फॉर एग्जांपल बी सिनेरियो क्या है कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगले महीने, ये 1 महीने का डेटा है फॉर एग्जांपल, अगले महीने कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी अगर मैं सोप की बात करूं तो मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता है, 5%, 10% से ज्यादा को कैटेगरी ग्रो करना बहुत टफ है। मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लेते हैं कि ये आउटलेट, ये सिचुएशन में भी ये जो आउटलेट है, इसका आउटलेट का नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले लें, राजपाल यादव। राजपाल यादव जो आउटलेट है वो सिनेरियो में 100 रुपए का बेच रहा था साबुन, जिसमें से 20 रुपए का साबुन अनुराग ब्रांड बेच रहा था। राजपाल यादव आउटलेट में क्या किया, सिनेरियो बी में कैटेगरी क्या ग्रो हुआ, 10% से ग्रो हुआ। तो सोप हम कितना ग्रो करते हैं, मान लेते हैं कि सोप ऑब्वियसली उस हिसाब से जो सिनेरियो बी है वो 100 से 110 होना चाहिए था, लेकिन मेरा सेल्समैन या मेरा जो टीम है, जो टीएसआई है, एसी है, जो टेरिटरी सेल्स ऑफिसर बोलते हैं, इंचार्ज बोलते हैं, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ये सब जो ग्राउंड पे काम करते हैं विद सेल्समैन एंड ऑल, वो पूरा अपना लगा दिया, क्या लगा दिया, अपना जो भी रिलेशन था 2-4 साल 5 साल 7 साल का वो लगा दिया, पूरा कन्विंस करने लगा, जो भी सेल्स पिच जैसा दे दिया, ये बता दिया कि इसका ऐड आने वाला है तो अक्षय कुमार साहब ऐड कर रहे हैं तो उसका सेल बढ़ेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आप रख लीजिए। जो भी सेल्स के फंडे थे, सो दैट कि आप एक दुकानदार से अच्छा रिलेशन को बेटर करते हैं, उनको आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। प्रॉफिट अगर दिखाने का मतलब ये भी है कि फॉर एग्जांपल उसको ये बताया कि भाई इसमें कंज्यूमर ऑफर आया है, क्या आया है, ये सोप लोगे 5 ठो तो 5 गो में एक है ना ब्रश फ्री मिलेगा। तो ये सब चीज उसको दिखाते हैं। ट्रेड ऑफर आया 500 पे 100 फ्री, वो 100 पक्का, दिस इज फॉर ट्रेड, ये दुकानदार के लिए ही है, मतलब है ना, उसी के लिए फायदे के लिए है। तो ये सब चीज हम दिखाएंगे, और वो दिखाने के बाद हम मान लो कि सोप का सेल विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी चेंज, कैटेगरी में 10% से ग्रो कर रहा था, अब हम मान लेते 30% से ग्रोथ हो गया, क्योंकि हमने माल को ज्यादा ढकेला है उस दुकान, ठीक है, या मैंने उधारी उसको बोल दिया कि भाई आपको 15 दिन को और उधारी देंगे,
तो इस चक्कर में वो माल और ले लिया, और सिनेरियो बी में उसके पास उसकी दुकान में टोटल सोप हो गया 130 रुपए। ठीक है, अब क्या है मेरे भाई कि जो अनुराग सोप था, अनुराग सोप में हमने क्या किया, क्योंकि मेरे सेल्समैन ने बहुत कन्विंस करा, जो भी फंडे थे उसने दिया, जो भी एक अच्छा मतलब है ना जो भी दुकानदार के लिए फायदेमंद चीज हो सकता था वो सब उसने दिखाया, और अनुराग सेल ने मोटा मोटी 50 रुपए और उसमें डाल दी। अनुराग सोप का सेल सिनेरियो बी में 50 रुपए का हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसी दुकान में जो मैं 20 रुपए तक प्रेजेंट था, अब मैं 50 रुपए प्रेजेंट हूँ, तो मेरा एससीएच क्या हो गया, मेरा बढ़ गया ना। एससीएच क्या हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है, तो मोटा मोटी 40% टाइप का मेरा एससीएच यहाँ पे हो गया, पहले 20% था, अब 40% हो गया। इसका फायदा क्या है वो समझना है, ये तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स समझा दिया आपको। इसका फायदा ये हुआ जब सिनेरियो ए में राजपाल यादव दुकान में, सिनेरियो ए में 100 रुपए का सोप में मेरा 20 रुपए प्रेजेंट था, मतलब मेरा 80 रुपए कंपटीटर बेच रहा था। सिनेरियो बी में आए 130 रुपए 25 रुपए है, फिर भी मेरा 80 रुपए कंपटीटर है, इसमें भी 80 है, लेकिन जो कैटेगरी 10% से ग्रो कर रहा था, तो यहाँ पे तो इस सिनेरियो में तो 30% से ग्रो किया है मेरे भाई। तो कैटेगरी जब 30% से इस सिनेरियो में राजपाल यादव आउटलेट में ग्रो किया है, तो कंपटीटर का ब्रांड भी 30% से ग्रो करना चाहिए था ना। मतलब ये जो 80 रुपए का मेरा कंपटीटर यहाँ बेच रहा है, वो कितना बेचना चाहिए था, 104 रुपए का बेचना चाहिए था। जब वो 30% से ग्रो करेगा तो 104 होना चाहिए था, लेकिन वो 80 रुपए ही रहा, और मेरा 20 रुपए सेल 50 रुपए हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दूसरे कंपटीटर से अपने ब्रांड के शेयर को मैंने खाया, राइट। मैंने उसके शेयर को खा करके उसका जो 30% अगर ग्रो करता, विच इज लाइक 24 रुपए का था, तो 24 रुपए का उसका सेल खा करके मैं अपने पास लाया अनुराग सोप में। तो समझ रहे हो कितना बड़ा मतलब हमने इसको काम किया। तो एससीएच का यही इंपॉर्टेंस है कि मेरे को उसी दुकान में दूसरे शेयर्स, दूसरे कंपटीटर के शेयर को खाना है। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली एक दुकान आप जाओगे तो एक सेल्फ रहता है, सेल्फ रहता है उसमें, मतलब हर एक सेल्फ में अपना अपना रहता है, कहीं पे सोप रहेगा, कहीं पे टूथपेस्ट रहेगा, कहीं पे आटा का सेल्फ रहेगा, कहीं पे मसाला का सेल्फ रहेगा। मान लेते मेरे को कुछ नहीं पता, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग, ब्रांडिंग एक्सेट्रा, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड का क्या इक्विटी है, ब्रांड का क्या वैल्यू है, कौन कितना बड़ा ब्रांड है, कौन छोटा ब्रांड है, क्या प्राइसिंग है, क्या नहीं है। जब मैं एज अ विदाउट एनी बायसनेस में एक दुकान में जाता हूँ और मैं दुकान का सेल्फ देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि पूरा सेल्फ में 20 आइटम है, अलग अलग ब्रांड का 20 आइटम है, और एक ही कैटेगरी का। उस 20 आइटम में मेरे को एक ऐसा है ब्रांड है जो 10 पीस प्रेजेंट है, बाकी 5 ब्रांड मिलाकर के 10 पीस है। एज अ अनबास कस्टमर तुमने क्या फोकस करोगे, क्या लॉजिकल होना चाहिए कि जो 10 पीस वाला जो आइटम है, जो ब्रांड है, आप उसी को ना लोगे। तो विजिबिलिटी का ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है कस्टमर का, है ना, वो जो कस्टमर का ध्यान को भटकाने में और एक ट्रस्ट बनाने में ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कस्टमर को अगर आपको एक एक अलग लेवल का ब्रांडिंग फीलिंग देना है, एक अलग लेवल का उनके माइंड में एक ब्रांड में का स्पेस बनाना है, तो विजिबिलिटी, नंबर्स एक अच्छे नंबर्स में हो, ताकि आपका ब्रांड छुप ना जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि 2 पीस डाल देते हैं इस आउटलेट में, लेकिन 2 पीस 3 पीस अगर कोई आप स्टॉक डाल रहे हो और उसका ब्रांड का कैटेगरी बहुत बड़ा है, तो फिर आपका वो तो 2-3 पीस जो भी आपने ब्रांड लॉन्च किया वो तो छिप जाएगा, छिप जाएगा। तो हो सकता है कि फिर बाद में तो 6 महीना बाद वो जब दिवाली में जब झाड़ू पोछा देगा, तो फिर आपका वो निकलेगा, और उसको निकलने के बाद क्या होगा, पता चलेगा वो डैमेज और एक्सपायरी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एससीएच पे फोकस करना। अब मैं विथ फॉर्मूला के साथ आपको बताता हूँ फटाफट, ठीक है, विथ फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, देखो ये मान लेते हैं ये 5 आउटलेट्स हैं, ए बी सी डी ई, अनुराग सोप टोटल सोप से,
का शॉप ए आउटलेट में कितना 5,000 है और वही टोटल शॉप का सेल 20,000 है। बी आउटलेट में अनुराग शॉप प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन कैटेगरी 30,000 से प्रेजेंट है। सी आउटलेट में 4,000 प्रेजेंट है तो कैटेगरी 10,000 से है। डी आउटलेट में 3500 प्रेजेंट है तो कैटेगरी 20,000 से है। और ई आउटलेट में अनुराग से शॉप प्रेजेंट नहीं है लेकिन कैटेगरी का सिर्फ 35,000 है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना होगा फॉर एग्जाम्पल तो सिंपल है, कितने में हम प्रेजेंट है 3 आउटलेट्स और कितना में मेरा कैटेगरी प्रेजेंट है 5, 3/5 कितना होगा 0.6। वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा? वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स ऑफ कैटेगरी दैट आवर ब्रांड इज प्रेजेंट। कैटेगरी सेल्स क्या है? ये वाला है। आवर ब्रांड इज प्रेजेंट क्या है? ये वाला है। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स ऑफ कैटेगरी जो भी है उसका क्वांटम, उसका टोटल सम विल बी व्हाट? ए आउटलेट में मेरा कैटेगरी का सेल कितना है जिसमें मैं प्रेजेंट हूं, ए में मैं प्रेजेंट हूं, तो ये वाला चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, ए वाला चीज एप्लीकेबल है तो 5,000 में 20%, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20K लिख देते हैं मेरे भाई। दूसरा, बी आउटलेट में प्रेजेंट हम नहीं है तो ऑब्वियसली उसका कैटेगरी का सेल्स हम नहीं लेंगे। सी में हम प्रेजेंट है, भले हम 4,000 प्रेजेंट है और 400 में भी रहते ना तो भी उसके कैटेगरी का सेल हम लेते। तो सी में कितना प्रेजेंट है टोटल कैटेगरी का सेल मेरा 10,000। डी में हम प्रेजेंट है, हाँ है, तो डी में मेरा कैटेगरी का सेल कितना प्रेजेंट है 20K, फिर से 20K डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ कैटेगरी। टोटल सेल ऑफ कैटेगरी क्या होगा? 20K, 30K, 10K, 20K, 35K का समेशन। ठीक है, एकदम इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। जिस जिस आउटलेट में हम प्रेजेंट थे उस आउटलेट का कैटेगरी सेल्स क्या हुआ? 20,000, 10,000, 20,000। ठीक है, उसी और उसके बाद टोटल सेल्स ऑफ आवर कैटेगरी क्या हुआ? इस पांचों मतलब पूरे एरिया में 5 आउटलेट है, इस एरिया का हम वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल, तो इस एरिया में 5 आउटलेट से तो 5 कैसे क्या 20, 30, 10, 20, 35, 20, 30, 10, 20, 35, तो ये मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको मतलब ही नहीं है, अगर मान लो ये डी जो है, डी के जगह 35 हो जाएगा, जब 35 रुपए भी रहता ना तो भी हम ये 20,000 यहाँ पे लिखते हैं। कहा गया? तो भी हम 20,000 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अगर 3500 जो अनुराग सूप बिक रहा है वहां पे अगर 35 रुपए का भी अनुराग सूप अगर हम बेचते ना तो फिर भी ऊपर में 20,000 आता। इसका टोटल क्या हो जाएगा? 20, 10, 30, 20, 50, 50,000 डिवाइडेड बाय 20, 10, 30, 30, 60, 20, 80, 30, 115, 115 के कट जाएगा। दिस विल बी अराउंड 43.5% के अराउंड होगा। तो यहाँ पे मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 0.43 बोल सकते हैं या 43% बोल सकते हैं। अब किसी कंपनी को फॉर एग्जांपल वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, ठीक है, किसी कंपनी को एक सेकेंड, किसी कंपनी को मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? जो मेरा वेटेड आउटलेट्स है जहां पे 30,000 हम बेच रहे हैं वहां पे हम प्रेजेंट ही नहीं मेरे भाई। आउटलेट जो बी आउटलेट है वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। जहां पे 35,000 बेच रहे हैं वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। सबसे ज्यादा कैटेगरी के वहां प्रेजेंट है, मतलब मेरे कैटेगरी के सबसे ज्यादा प्रोबेबल कस्टमर आउटलेट नंबर ई और बी में आते होंगे या फिर ऐसे एक्स नंबर ऑफ आउटलेट हो सकते हैं। तो मेरा एज ए सेल्समैन, एज ए ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ये काम होगा कि मैं टीम को गाइड करूंगा कि भैया बी और ई आउटलेट में प्रेजेंट हो। राइट, अगर बी आउटलेट में प्रेजेंट हो गए तो क्या होगा? बी आउटलेट में अगर मान लो हम यहाँ पे 1,000 रुपए से प्रेजेंट होते हैं तो मेरा ऊपर में हम 30K भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ई आउटलेट्स में भी हम प्रेजेंट रहते हो जाते हैं मान लो 500 रुपए से, सिर्फ 500 रुपए से पहले प्रेजेंट हो जाते हैं, ऊपर में 35K भी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम हर एक आउटलेट प्रेजेंट रहते हैं जहां भी मेरा कैटेगरी प्रेजेंट है तो मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 विच इज इक्वल टू 100%।
कंपनी का एज ए सेल्समैन, एज ए फैमिली, हमारा काम नहीं होना चाहिए कि हम वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारा ईगो गड़बड़ाए नहीं। जो रूरल में हमारा बिलिंग एफिशिएंसी होता है सब डिवी टाउन में, हम ट्राई करते हैं कि मेरा जो आउटलेट है वो रेगुलर लेवल पर प्रेजेंट हो, ताकि मेरा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इंटैक्ट रह सके और मेरा मार्केट शेयर डिस्टर्ब ना हो, मार्केट शेयर मेरा डाइल्यूट ना हो, ग्रेजुअली डिक्रीज ना करे। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रेड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब एक बार एससीएच क्या है उसको समझ लेते हैं भाई, विद फॉर्मूला एंड ऑल। ठीक है, एससीएच में क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, एससीएच का सिंपल फॉर्मूला टोटल सेल्स ऑफ आवर ब्रांड वेयर वी आर प्रेजेंट। तो एसएच विल बी इक्वल टू क्या हो गया, ए में हम प्रेजेंट है, हाँ कितना हमारा ब्रांड अनुराग सो 5000, 5 के। बी में हम प्रेजेंट है नहीं, कितना 0। सी में हम प्रेजेंट है कितना अनुराग सो 4 के। डी में प्रेजेंट है कितना है 3.5 के, डिवाइडेड बाय टोटल सेल ऑफ कैटेगरी, टोटल सेल ऑफ कैटेगरी इन द आउटलेट्स वी आर प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल है, टोटल सेल ऑफ कैटेगरी इन द आउटलेट्स वी आर प्रेजेंट, कितना कितना हम प्रेजेंट है। ए में हम कितना प्रेजेंट है कैटेगरी 20 का, बी में 30 लेंगे नहीं क्योंकि वहां हम ही प्रेजेंट नहीं है, तो 20,000 नहीं लेंगे, 0 होगा। सी में हम प्रेजेंट है, सी का कैटेगरी सेल कितना 10,000। डी में हम प्रेजेंट है, डी में कैटेगरी का सेल कितना है 20,000। ई में हम प्रेजेंट है नहीं है, तो 35,000 हम नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा 12.5 के डिवाइडेड बाय 2 तो 4 1 5 के। ठीक है, तो ये हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, टोटल सेल ऑफ आवर ब्रांड वेयर वी आर प्रेजेंट लिख दिया। ए आउटलेट में अनुराग सो कितना प्रेजेंट है 5,000, बी आउटलेट में अनुराग सो कितना प्रेजेंट 0, सी आउटलेट में अनुराग सो कितना प्रेजेंट 4,000, डी आउटलेट में अनुराग सो कितना प्रेजेंट है 3,500। उसी आउटलेट में हमारा कैटेगरी पूरा कितना प्रेजेंट है, जो मेरा ब्रांड है उसका कैटेगरी कितना प्रेजेंट है, 5,000 में 20,000 प्रेजेंट है, बी वाला में 0 तो कुछ नहीं है, सी वाला में 4,000 में 10,000 प्रेजेंट है, एंड ई वाला में कुछ नहीं है तो 0, और डी वाला में 3,500 में हमारा 20,000 प्रेजेंट है तो वो लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 50 के कट गया 5 बचे 25, मोटा मोटी 5 10 5 बचे 0.25 आएगा विच इज लाइक 25%। ठीक है, 25%। तो ये मेरा एसएच हो जाएगा। अब एसएच को हमको बढ़ाना है, इसके लिए सिंपल सा है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये जो 5,000 बेच रहे हैं, 5,000 को क्या करना पड़ेगा, अगर आप 5,000 को 10,000 कर देते हैं तो ये 5,000 की जगह 10,000 हो जाएगा। 10,000 होगा तो ये 12.5 की जगह पे 10 4 14 3 17.5 हो जाएगा। 17.5 को डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, 50 करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 और 15 2 25 25 25 तो 0.35 हो जाएगा, मतलब 35% हो जाएगा। एसएच हमने 25% से 35% से क्या किया कि आउटलेट ए में अनुराग सो जो 5,000 था उसको हमने 10,000 बेच दिया, तो हमारा एसएच बढ़ गया। तो अगर मार्केट शेयर सही करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसएच को बेटर करें, और एसएच बेटर करने के लिए जो आउटलेट प्रेजेंट है उसमें हम और भी जोर से प्रेजेंट, और भी जोर से प्रेजेंट होने का क्या था, हम उससे आउटलेट का रिलेशन अच्छा बनाए, उस आउटलेट को हम टाइम पे स्टॉक दे, उस आउटलेट के साथ हम जो भी उसका इश्यूज है डैमेज वगैरह का उसको अच्छे से सॉल्व करें, उस आउटलेट को हम उधारी अगर वैसा रिक्वायरमेंट होता है तो एज अलाइंड विद द डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल पार्टनर उसको अलाइन करके उधारी सही करें, जो स्कीम मैंने कंपनी देता है वो स्कीम को पास ऑन करे। बहुत सारे ब्रांड होते हैं पास ऑन नहीं करते हैं, उसके वजह से दिक्कत होता है, एक निगेटिव
इन्वायरमेंट क्रिएट होता है दोज टीम्स, तो वो सब जो भी चीजें हैं उस पर हम काम करें, रेगुलर आउटलेट को विजिट करें, रेगुलर ऑर्डर का उसको है ना ध्यान दे कि भाई इसमें थोड़ा अभी ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है तो अभी ज्यादा स्टॉक कर लो। वो सब जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट की है, वो सब पे काम करें ताकि हमारा एससीएच इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अब मैं एक और चीज है यार, छोटा सा मैं लूंगा टाइम, और मार्केट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? एक सिंपल सा मार्केट शेयर क्या बोल सकते हैं कि हम कितना प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय पूरा दुनिया कितना प्रेजेंट है इन द सेम कैटेगरी, राइट? मार्केट शेयर का आप लोग बहुत बार सुने होंगे, इज इक्वल टू वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एसएएच, राइट? ऐसा आप लोग कभी सुने होंगे। अब ऐसा कैसे दिखाते हैं आपको? वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एसएएच, ठीक है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था मेरे भाई? टोटल सेल ऑफ आवर कैटेगरी वेयर वी आर प्रेजेंट, ठीक है। सेल ऑफ आवर कैटेगरी वेयर वी आर प्रेजेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या था? टोटल इंडस्ट्री कैटेगरी का सेल, टोटल सेल ऑफ कैटेगरी इन द मार्केट लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इनटू एसएच क्या था? सेल्स ऑफ आवर ब्रांड वेयर वी आर प्रेजेंट। इसलिए मैं लिखता हूं ना भाई कि इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही रहता है। वो तो ऑब्वियसली पता है जहां जीरो है तो वहां हमारा सेल जीरो ही है, लेकिन जस्ट टू हैव यू अ डिसेंट मैथमेटिकली प्रूवन थिंग। एंड एसएच का फुल फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स ऑफ आवर ब्रांड वेयर वी आर प्रेजेंट और सेल ऑफ कैटेगरी इन द, उसी कैटेगरी का, उसी आउटलेट्स का कैटेगरी का सेल लेना है जहां पे मेरा ब्रांड प्रेजेंट है, इन द आउटलेट्स वेयर वी आर प्रेजेंट, ठीक है। अब इससे देखो कुछ समझ में आ रहा है? एक बार देखिए थोड़ा सा, ये और ये सेम लग रहा है? सेल ऑफ आवर कैटेगरी वेयर वी आर प्रेजेंट, सेल ऑफ कैटेगरी इन द आउटलेट्स वेयर वी आर प्रेजेंट, सेम है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो मार्केट शेयर इक्वल टू, जो मैं बोल रहा था कि सेल ऑफ आवर ब्रांड, अगर अपने ब्रांड का मार्केट शेयर किसी मार्केट में निकाल रहे हैं तो सेल ऑफ आवर ब्रांड इन वेयर वी आर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल ऑफ कैटेगरी वेयर वी आर प्रेजेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल ऑफ कैटेगरी इन द मार्केट, माय बैड, इन द मार्केट। तो ये होता है मार्केट शेयर। तो NDWDSCH ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड मार्केटिंग टीम होती है, ब्रांडिंग टीम होती है, और जो सेल्स टीम होती है, बहुत सारे सेल्स टीम ये सब डेटा नहीं देखते हैं, बट मेरे हिसाब से देखना चाहिए, ताकि कुछ करना है, कुछ सेल्स का दुकान बढ़ाना है, नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ाने हैं, रीच बढ़ाना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे जो मकसद है वो भी क्लियर होता है ना, तो आप और अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। तो एज ए सेल्स गाय आई सजेस्ट कि इस पे प्लीज वर्कआउट करिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारा ब्रांड है, इसका जो वैल्यू है वो नुकसान ना हो, क्योंकि जो हमने इतना मेहनत से खड़ा किया अपने ब्रांड को मार्केट में, उसको और भी बेहतर तरीके से हम वहां से आउटपुट ले पाए और सेल को बढ़ा पाए, रेदर हमारे कुछ बेवकूफी डिसीजन की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से वो ब्रांड पूरी तरीके से मार्केट से वॉश आउट ना हो जाए। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। इसीलिए हर एक लेवल पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो अपना अपना केपीआईज को ड्राइव करते हैं, ताकि एक ब्रांड वैल्यू जो है, ब्रांड का जो औकात है मार्केट में, वो इंटैक्ट रह सके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए अब मैं और इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। इसके बाद एक जीटीएन रेशियो करके आता है जो कि थोड़ा बहुत मार्केट शेयर से रिलेटेड है, ग्रॉस टू नेट, ये जीटीएन आता है।
GTN के बारे में एक लाइन बस बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रियल जूस मार्केट में है, उसका कंपनी ट्रॉपिकाना है, दोनों का प्राइस पॉइंट मोटा मोटी 10% प्लस माइनस में रहता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मेरे को ट्रॉपिकाना का सेल बढ़ाना है, तो बहुत सारा तरीका है। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, न्यूमरिक ज्यादा आउटलेट्स प्रेजेंट होंगे, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, ज्यादा राइट आउटलेट सेट ऑफ आउटलेट प्रेजेंट होंगे, SDH बढ़ाएंगे, जिस आउटलेट में प्रेजेंट है उसमें और भी ज्यादा प्रेजेंट होंगे ताकि हम रियल जूस का मार्केट शेयर खा पाए। उस ये करने के लिए हो सकता है हम एक काम करते हैं ना, बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक एक है ना ट्रॉपिकाना में एक ट्रॉपिकाना फ्री कर देते हैं। तब तो जितना दुकान मान लो 5 पेटी तो जूस रखता था, वो तो 10 पेटी रखेगा, क्योंकि ट्रॉपिकाना में एक फ्री है, कंज्यूमर ज्यादा लेगा। क्योंकि अगर रियल जूस का दाम 110 है, ट्रॉपिकाना का 100 रुपए है, ये तो और अच्छी बात है, 100 रुपए में उसको 2 को मिल जाएगा एक लीटर का जूस, और रियल जूस तो 110 में एक ही दे रहा है। समझ रहे हैं? तो वो भी काम कर सकता है, कोई भी मार्केटिंग टीम जो हैंडल कर रहा है, ट्रेड मार्केटिंग जो हैंडल कर रहा है, जो स्पेंड लगा रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, वो ज्यादा पैसा खर्च करके हम मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल, बट दैट विल नॉट बी सो लॉजिकल। ऐसा हर एक कंपनी कर सकती है, बट इससे जो हमारा EBITDA है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, वो सब इफेक्ट होता है। जो हमारा ROI है, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई कंपनी ब्रांड लेवल पे, वो इफेक्ट होता है। कैटेगरी लेवल पे, ब्रांड लेवल पे बोल लो, तो इसीलिए हम वो नहीं करते। तो इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट वे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी कोई भी दिक्कत, समस्या या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, सेल्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, कुछ पर्सनल क्वेरी हो, प्रोफेशनल क्वेरी हो, प्लीज कमेंट, प्लीज मैसेज मी। आई ट्राई टू रीच आउट टू मैक्सिमम, and try to solve and make videos around those topics as soon as possible। जितना मेरे को टाइम मिलेगा साबुन बेचने और हार्पिक बेचने के अलावा, आई ट्राई टू डिवोट माई मैक्सिमम टाइम टू यू। ठीक है, इतना टाइम मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए जोश के साथ। थैंक यू।